کیا اب قبضہ مافیا کا کھیل ختم ہو گیا؟ ہر جائیداد مالک کے لیے جاننا ضروری ہے۔ ابو، یہ تو ہماری زمین تھی نا؟ بزرگ کانپتی ہوئی آواز میں کہتے ہیں۔ ہاں بیٹا، یہ زمین بھی ہماری ہے، رجسٹری بھی ہمارے نام ہے، انتقال بھی ہمارے نام ہے، لیکن قبضہ کسی اور کا ہے۔ وہیں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر تمام کاغذات آپ کے نام پر ہیں تو قبضہ کسی اور کا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر ایسا ہو جائے تو پھر انصاف کتنے سال بعد ملتا ہے؟ دوستو، ذرا تصور کریں، آپ نے اپنی زندگی بھر کی کمائی سے ایک پلاٹ خریدا، رجسٹری بھی ہو گئی، انتقال بھی مکمل ہو گیا اور تمام ٹیکس بھی ادا ہو گئے، لیکن ایک دن آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی زمین پر کوئی اور شخص قابض بیٹھا ہے، اور جب آپ پولیس، پٹواری، تحصیل اور عدالتوں کے چکر لگاتے ہیں تو سالوں گزر جاتے ہیں، پیسہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور ذہنی سکون بھی ختم ہو جاتا ہے۔ سوال یہ ہے، کیا 2026 کا ترمیمی آرڈیننس اس نظام کو بدل سکتا ہے؟ کیا قبضہ مافیا کے خلاف قانون پہلے سے زیادہ سخت ہو گیا ہے، یا یہ صرف ایک اعلان ہے؟ آج ہم یہ پوری حقیقت قانون کی زبان میں بھی اور آسان اردو زبان میں بھی سمجھیں گے۔ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر جائیداد کی رجسٹری ہو جائے تو اب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رجسٹری صرف ملکیت کا ثبوت ہو سکتی ہے۔ قبضے، فراڈ، جعلی دستاویزات اور قانونی تنازعات کے مسائل الگ نوعیت رکھتے ہیں۔ اسی لیے صرف رجسٹری کافی نہیں، بلکہ قانونی تحفظ بھی ضروری ہے۔ آئیے ایک عام شہری اکرم کی کہانی سنتے ہیں۔ اکرم صاحب نے 30 سال کی محنت سے 5 ایکڑ زمین خریدی، تمام قانونی مراحل مکمل کیے، لیکن چند سال بعد اسے معلوم ہوا کہ زمین پر غیر قانونی قبضہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے پولیس کے چکر لگائے، ریونیو دفاتر گئے اور عدالتوں میں مقدمات بھی کیے، مگر ان کا اصل سوال یہی تھا، اگر قانون میرے ساتھ ہے تو انصاف اتنی دیر سے کیوں مل رہا ہے؟ یہ صرف اکرم صاحب کی کہانی نہیں، بلکہ ہزاروں خاندانوں کی حقیقت ہے، جہاں جائیداد کے جھگڑے نسلوں تک چلتے ہیں۔ کسی کی زمین جعلی کاغذات پر فروخت ہو جاتی ہے، کسی پر طاقت کے زور پر قبضہ کر لیا جاتا ہے، اور اصل مالک صرف تاریخیں بھگتتا رہ جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے، آخر پنجاب حکومت نے 2026 میں ایسا کیا تبدیل کیا جس کی وجہ سے لوگ اس ترمیمی آرڈیننس کی بات کر رہے ہیں؟ کیا اب واقعی قانون پہلے سے مختلف ہے؟ دوستو، اس ویڈیو میں ہم
पंजाब के प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से मुताल्लिक 2026 की कानूनी तब्दीलियों को आसान उर्दू ज़बान में समझेंगी। लेकिन याद रहे, यह वीडियो सिर्फ आगाही के लिए है। हर मुकदमा अपने हक़ाइक़ के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकता है, इसलिए किसी मखसूस तनाज़े के मुकदमा में मुस्तनद कानूनी मशवरा हासिल कर सकते हैं। आज की वीडियो में आप जानेंगे, पहली बात, 2026 में तरमीमी आर्डिनेंस में असल तब्दीलियां क्या हैं। दूसरी बात, यह कानून किन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देता है। तीसरी बात, अगर आपकी ज़मीन पर कब्ज़ा हो जाए तो आपके लिए कानूनी रास्ता क्या हो सकता है। एक शख्स ने 10 साल बाद अपने वालिद की ज़मीन संभालने का फैसला किया। जब वो मौका पर पहुंचा तो वहां किसी और की फसल खड़ी थी। उसने जाकर कहा, यह तो मेरी ज़मीन है। तो सामने वाले ने जवाब दिया, अगर यह ज़मीन आपकी है तो साबित करो। उसी लम्हे उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ ज़मीन खरीद लेना काफ़ी नहीं, बल्कि उसके कानूनी तहफ़्फ़ुज़ को समझना भी ज़रूरी है। फ़र्ज़ करें, 2 अफराद के पास एक जैसी रजिस्ट्री है, लेकिन एक शख्स अपने रिकॉर्ड, दस्तावेज़ात और कानूनी हकूक से वाकिफ है, जबकि दूसरा कुछ नहीं जानता। और अगर मामला अदालत में गया तो आगाही रखने वाला शख्स अपने केस का दिफा बेहतर तरीके से कर सकता है, जबकि दूसरा जो कोई आगाही नहीं रखता तो वह अपने केस का दिफा नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से उसका केस हारने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, ज़मीन सिर्फ मट्टी का टुकड़ा नहीं होती, इसमें किसी की उम्र भर की कमाई, किसी बाप की मेहनत और किसी खानदान का मुस्तकबिल छुपा होता है। इसीलिए जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ कानूनी मसला नहीं, बल्कि इंसाफ का मसला भी है। लेकिन यहाँ एक हैरान कुन सवाल पैदा होता है, अगर इतने कवानीन पहले से मौजूद थे तो फिर यही नया तरमीमी आर्डिनेंस लाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। आखिर पुराने कानून में ऐसी कौन सी कमज़ोरियां थीं। हकीकत यह है, वक्त के साथ जायदाद से मुताल्लिक फ्रॉड, कब्ज़े और कानूनी तनाज़ात के तरीके भी बदलते जा रहे हैं, ताकि मालकान के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाया जा सके। अगर आप ज़मीन, घर या गैर मनकूला जायदाद के मालिक हैं तो सबसे पहले अपने कानूनी हकूक़ को समझें और रिकॉर्ड को महफूज रखें, और किसी भी लेन देन से पहले तमाम दस्तावेज़ात का अच्छी तरह जायज़ा लें। याद रखें, सोशल मीडिया या लोगों की सुनी सुनाई बातों पर कानूनी फैसला हरगिज़ ना करें। अगर आप चाहते हैं कि जायदाद, ज़मीन और पंजाब के नए कवानीन की अहम तब्दीलियों के बारे में इसी तरह आसान उर्दू ज़बान में समझाएं, तो आपके अपने YouTube चैनल नजीब टीवी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम नजीब टीवी के ज़रिए कानून को मुश्किल ज़बान में नहीं
बल्कि एक आम आसान उर्दू ज़बान में समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आपकी जायदाद पर कब्जा, मलकियत का तनाज़े या ज़मीन के रिकॉर्ड के मुतालिक कोई भी मसला है तो बग़ैर मुकम्मल कानूनी जांच के कोई भी कदम ना उठाएं, क्योंकि दुरुस्त रहनुमाई आपको एक लंबे कानूनी तनाज़े से बचा सकती है। क्योंकि जायदाद सिर्फ असासा नहीं बल्कि आपके आने वाले नस्लों की अमानत है। किसी भी किस्म की मुकम्मल रहनुमाई के लिए आप हमें वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम हर वक्त आपकी मुकम्मल रहनुमाई के लिए दस्तयाब है। उम्मीद है आज की यह वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी और आप अपने YouTube चैनल नजीब टीवी को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर करेंगे, क्योंकि हम नजीब टीवी के ज़रिए आपके रोज़मर्रा के सवालात के जवाब, मुख्तलिफ मौज़ूआत और कवानीन पर आसान उर्दू ज़बान में वीडियोज़ बनाते रहते हैं, ताकि आपको आगाही हो और आप आगाह होकर मुआशरा में बेहतर और मुहज़्ज़ब अंदाज से ज़िंदगी गुजार सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।